for Kolkata region. Care of distributor support across Kolkata region. So today we are going to discuss about our mobile app. Especially we are focusing on our mobile app, K-Pin card for distributed mobile app. Because nowadays, considering the scenario, everyone is using either Android mobile or iPhone. So it is very easy for you to operate mobile and to operate our platform through the mobile application. So without wasting any time, I am going to log into our mobile app. So I guess I am audible. So yes, I'm audible, right? Yes. I'm audible. Okay. So after logging into the mobile app, this is the mobile screen. I guess everybody can view my screen. I have already shared my screen. Kudumda, please let me know if anybody can't view my screen. Everybody, please write in the chat box. Show yes or no. So if anybody facing any difficulty about the audio, or if anybody can't view my mobile screen, which I have already shared with through Zoom, please write it in the chat box. We'll rectify the issue. So I guess everybody can view my mobile screen and everybody can hear my voice. I'm audible. Now, after logging to the mobile screen, this is the home screen. This is the dashboard. Through the dashboard, as a distributor, you can get your total AUM, how many number of investors you have, and how many scheme invested through you. And along with this thing, there are 3 different buttons: expire, authorization approve, and authorization pending. Mr. Raj is voice not clear. Mr. Raj is asking, but this our voice is too clear. Yes. Utanda, can you hear me properly? Yes, I hear, but write in the chat box, voice not clear. Okay. Now, Mr. Raj, is it clear? Hello? Mr. Raj, is it clear? Okay. So now move forward. If you can see my screen, there are 3 different buttons: authorization expire, authorization approve, and authorization pending. So what are all these things? So you have the authority to initiate a transaction on behalf of your investor, whether it is a purchase, whether it's a redemption, switch, SIP, STP, SW. So as soon as you initiate a transaction, automatically it will go to the authorization pending mode. Now, as soon as your investor approves the transaction, if it is a redemption, suppose the investor has approved the transaction, it will go to authorization approved transaction. Means the cycle has been completed. Now, if suppose you have initiated a transaction and your investor has failed to approve the transaction, and after 24 hours, the transaction will move to the authorization expire module. And in that case, you have to, as a distributor, you have to reinitiate the transaction. This is a basic. Now, other than this transaction from the home screen, you can get your AUM bifurcation. I guess everybody can view my screen. Now there is a My AUM button. You can see My AUM. So if I click on the My AUM button, now there will be a breakup, asset class-wise breakup, that the investment done through your code, debt, equity, and liquid. The example which is appearing in my screen is only for debt and equity. Suppose debt is showing as 88% and debt is 12%. Now, if I scroll upward, if I can scroll upward, or other than if I can scroll left hand side, so there is a fund-wise breakup. So there is a fund-wise breakup. What is the fund-wise breakup? First, it will come the AMC-wise breakup. That, for example, suppose Axis AMC is coming, total asset is such and such. If I move forward, BNP Paribas is coming, UXA, Canara Robeco. So as a distributor, you can view your total AUM on the home screen. That is number 1. And under this My AUM button, you can view your AMC-wise AUM.
Very easy. AMC wise AUM. If you scroll down, you can view your AMC wise AUM, and along with the AMC wise AUM, you can get the number of investor logged in through your broker code in the particular mutual fund. What is the new new investor? What are the active investor, and what are the inactive investor? So these things you can get it in your fingertip. In our mobile app, through the home screen, you can get all the detail in your fingertip under My AUM button. Okay. Now, another very important thing I think you can see in the mobile screen, that is the NFO. Now, what is it? Is NFO button? NFO is you can trigger the NFO link, NFO investment link to your investor. Suppose right now, Nippon NFO is going on in Nippon AMC. Okay. Now, if I click on this NFO, right now nothing is active, so it is showing nil. So let me show you a PDF for your ready reference. So it is the NFO screen. If I click on the NFO screen, a button, a new window will appear. Then you have to click on this, click on link button. Clicking on the link button as a distributor, you can create a general link for your investor. So create a link and share with your investor. Suppose you have 200 investors under your code. So share the link with all 200 investors. Anyone logged in the NFO through this particular link, the credit will be goes to your account only. So it is very easy, I think. So we have covered the AUM part, My AUM, and transaction summary. Transaction summary is after initiating a transaction, it will appear as pending. As soon as your investor approve, it will go to the approve module. And if the investor failed to approve within 24 hours, it will go to expire and you have to reinitiate the transaction. Okay. Now, some couple of things are also there under this under the dashboard. That is the SIP expire next month. What are the SIP running in your code are going to expire next month? You can get it over here. SIP close this month. What are the SIP that are going to close this month? And total SIP investment, you can get it from the mobile home screen. So right now we are in the dashboard menu. If you can view my mobile screen, there are 5 different modules at the bottom of your screen. One is dashboard, second is investor, third is transaction, fourth is earning, and fifth one is menu. This one is very important. So I have covered the dashboard option right now. Now I am going to the investor module. Investor. Click on the investor module. Now all the investor under your code will be appear under this all investor module. You can search your investor through 5 different options. Just look into my screen very carefully. It is name, PAN number, folio number, mobile number, and email ID. You can search your investor through these 5 different options. Suppose I have searched my investor and click on this investor name. Clicking on this investor name, a new window will appear. A summary will appear. First of all, a summary will appear, investor name will appear, status will appear, the KYC is okay, FATCA is okay, mobile number, email ID, total AUM for this investor will appear. If there is an overall appreciation, it will appear, and today's appreciation will appear. Now, there is a button, initiate investment. So, clicking on this initiate investment, I can do transaction for this particular investor. क्या कर सकता हूं मैं? ये इन्वेस्टर के लिए मैं ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकता हूं अगर मैं ये इनिशिएट इन्वेस्टमेंट बटन को क्लिक करूं तो.
Now, under this module, if you can see, there is a fund allocation. Fund allocation means इस particular investor का कौन सा asset class में investment है, debt, equity and liquid. Liquid में इसमें नहीं है, तो this investor has an investment in debt and liquid. You can get a graphical representation. Okay. So along with the graphical representation, you have also the textual representation. ये हो गया आपका graphical representation और नीचे आ गया आपका textual representation. ये डेट में कितना है, इक्विटी में कितना है. अगर मैं देखना चाहता हूं कि ठीक है, ये तो मैंने देख लिया, तो समरी है. इक्विटी के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है. What are the mutual fund in which the investor has an investment under equity class, asset class. तो मैं इक्विटी को क्लिक करूंगा, क्लिक ऑन द इक्विटी, मेरे पास आ जाएगा जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक्सिस में है और एएमसी में. इफ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, देखना चाहता हूँ कि ठीक है एएमसी तो निपॉन दिखा दे यहाँ, बट अंडर दिस पर्टिकुलर एएमसी व्हाट आर द स्कीम्स अवेलेबल, स्कीम्स क्या क्या अवेलेबल है. So I have to click on this show schemes under this scheme. Click on the show scheme under this scheme. So now scheme will appear. यहाँ पे शो क्या शो कर रहा है, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड, एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है. Now if I want to get more detail about this particular scheme, scheme तो मुझे दिख गया. अब ये स्कीम के अंदर कितना सारा फोलियोज है, तो I have to click here for more detail about this scheme. Click on this more detail. So मेरे पास अभी फोलियो नंबर आ गया. Now look into the screen very carefully. इस स्क्रीन को बहुत गौर से देखिएगा. स्क्रीन नंबर आ गया, फोलियो नंबर आ गया, प्लान आ गया, एनएबी आ गया, यूनिट आ गया. Now there are 5 different icons at the bottom of your screen. This is purchase, this is redemption, this is switch, this is NAV, and this is the most important is statement of account. If you want to generate a statement of account for this particular folio appearing in the screen for this particular scheme, Nippon India Banking and Financial Service Fund, you have to click on this icon. This is the statement of account generation icon. तो चलिए क्लिक करके देखते हैं इसमें. इसमें क्या होगा, तुरंत आपका सामने, आपका आंखों के सामने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जनरेट हो जाएगा. देखिए गौर से देखिए, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जनरेट हो गया. निपॉन का लोगो देके आ गया, नाम, डिटेल, कौन सा स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, तुरंत आपके सामने आ गया. मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है. नॉट टू द रजिस्ट्रार, नॉट टू द एएमसी. आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल में जो अपना सॉफ्टवेयर है K-FinCard फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके जरिए आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपका आंखों के सामने आ गया. ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को आप अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करना चाहते हैं. वेरी गुड. ऊपर जो 3 डॉट्स दिख रहा है, 3 डॉट्स में क्लिक कीजिए. ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सेंड फाइल. तो सेंड फाइल में क्लिक करते हैं. सेंड फाइल के क्लिक करने के साथ साथ सिस्टम आपको ऑप्शन देगा कि सेंड फाइल आप कौन सा माध्यम के जरिए सेंड करना चाहते हैं. व्हाट इज द प्लेटफॉर्म. व्हाट्सएप करना चाहते हैं, जीमेल करना चाहते हैं, टेलीग्राम के जरिए भेज सकते हैं, आउटलुक के जरिए भेज सकते हैं. तो एज पर इन्वेस्टर्स कन्वीनियंस यू कैन शेयर दिस पीडीएफ. ये जो पीडीएफ यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन शेयर द पीडीएफ विद योर इन्वेस्टर. That is very easy. So we have generated the statement of account from this portal, from this thing. लेकिन इस particular investor के लिए, if you want to make a transaction, so then you have to click on this initiate investment. आपको सबको दिख रहा है, स्क्रीन में आ रहा है आपको initiate investment. You have to click on this initiate investment. चलिए क्लिक करते हैं. Click on this initiate investment.
देखिए काफी सारा ऑप्शन आ गया। ई नैश हो गया, मैं बाद में बताता हूँ उसको। NFO न्यू परचेज, SIP, NFO एडिशनल, रिडेम्पशन, स्वीट, STP, SWP, पॉज, कैंसिलेशन, ये सब कुछ आपके सामने आ गया। लेकिन ये सारा मॉड्यूल एक्टिव है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए जिसके लिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सपोज यू वांट टू डू SIP, SIP को क्लिक करते हैं। SIP को क्लिक करने के साथ साथ देखिए इन्वेस्टर का नाम, पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अब SIP टाइप चूज करना है। There are 4 different type of SIP, existing folio SIP registration। इसमें क्या होता है, आपको इनिशियल पेमेंट करने का कोई जरूरत होता है। एग्जिस्टिंग फोलियो SIP रजिस्ट्रेशन विद पेमेंट, पेमेंट करके आपको आगे बढ़ना है। न्यू फोलियो SIP रजिस्ट्रेशन, न्यू फोलियो क्रिएट होगा लेकिन इनिशियल पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। न्यू फोलियो SIP रजिस्ट्रेशन विद पेमेंट, मतलब इनिशियल पेमेंट करके फिर यू कैन प्रोसीड। तो 4 ऑप्शन है, चलिए लास्ट वाला ऑप्शन लेते हैं। ऑटोमेटिकली देखिए क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर का डिटेल इज ऑल अवेलेबल इन आवर रिकॉर्ड। देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। नाउ आई कैन चूज द एम्स। चलिए एम्स चूज करते हैं। एम्स चूज कर लिया, कैटेगरी चूज कर लिया, कैटेगरी इक्विटी चूज कर लिया, स्कीम चूज कर लिया, स्कीम जैसे आर्बिट्रेज फंड चूज कर लिया, एआरएन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यूएन डिक्लेरेशन, यूएन डिक्लेरेशन विल ऑलवेज बी नो, नो में टिक हो रहेगा। और आपका अंदर जो यूएन नंबर है, अगर मल्टीपल यूएन नंबर है तो यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। देखिए ड्रॉप डाउन क्लिक करने से इतना सारा यूएन आ गया, तो मैं कोई भी एक यूएन चूज कर सकता हूँ। यूएन चूज करके आगे बढ़ सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी, सपोज आई चूज मंथली, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नंबर देखिए दिख रहा है मिनिमम में 6, तो चलिए मिनिमम मैंने ठीक है 12 देते हैं। SIP डे, अभी तो ऑल SIP हो गया तो 15 लेते हैं, ठीक है। 15 लेने के साथ साथ देखिए SIP स्टार्ट डेट एंड SIP एंड डेट सिस्टम विल सिलेक्ट एज पर द अबव मेंशन क्राइटेरिया। ये मंथली है, इंस्टॉलमेंट है, SIP डे है, इसके ऊपर बेस करके सिस्टम विल सिलेक्ट the SIP start date and end date. User doesn't have the authority to put it manually. Okay. Now SIP start date end date हो गया। perpetual SIP है, अभी perpetual भी यहाँ पे आ गया। अभी अगर आप perpetual SIP चाहते हैं तो perpetual यहाँ पे टिक कर दीजिए, यहाँ पे नहीं आएगा अभी। Ovikda, mute on. Yes. हाँ ठीक है, ओके। नाउ इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट सपोज आई हैव मेंशन 1000। डन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ISIP एंड KOTM। KOTM मतलब इन्वेस्टर का अगर KOTM रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी इन्वेस्टर को ये ऑप्शन दिखेगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को जब इनिशिएट करेगा तो ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज only ISIP option will be available. If ISIP option has been selected, तो ये एक्टिविटी खत्म होने के बाद इन्वेस्टर इज सपोज टू रिसीव ए URN नंबर। URN नंबर मिलने के बाद इन्वेस्टर हैव टू लॉग इन टू हिज और हर नेट बैंकिंग एंड ऐड द URN नंबर एज ए बिलर। उनको जो URN नंबर मिलेगा वो URN नंबर इन्वेस्टर को उनको नेट बैंकिंग में लॉगिन करके एज ए बिलर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो जो फ्यूचर SIPs है वो नहीं डिडक्ट। एंड व्हाट इज KOTM? KOTM इज ए वन टाइम एक्टिविटी, मैं बाद में थोड़ा बाद दिखाता हूँ। जो E-NASH मैंने देखा है ना, दैट इज KOTM। KOTM एक बार रजिस्ट्रेशन रहेगा तो इफ डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट KOTM एंड प्रोसेस द SIP, तो उसमें URN का कोई झमेला नहीं रहेगा। देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ URN, मतलब URN जो ऐड करने का जो ऑप्शन होता है वो इन्वेस्टर के पास नहीं आएगा। जस्ट सिलेक्ट KOTM एंड प्रोसेस द ट्रांजैक्शन। हाँ, कोई पूछ रहा है कि हाउ टू KOTM के बारे में मैं थोड़ा देर बात बताता हूँ। We have a separate module through which you can do KOTM. Okay. Now lump sum investment दे दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद इन्वेस्टर के पास एक लिंक चला जाएगा।
तो there are multiple queries I used to receive from the partners that ये इन्वेस्टर के पास जो जाता है, इन्वेस्टर कैसे करेगा, इन्वेस्टर को मालूम नहीं होता कैसे करेगा. तो लेट मी शेयर यू व्हाट इन्वेस्टर इज एक्चुअली रिसीव. इन्वेस्टर के पास जो लिंक जाता है, इन्वेस्टर को लिंक क्लिक करने के बाद इन्वेस्टर क्या दिखता है, व्हाट इन्वेस्टर इज एक्चुअली सपोज टू व्यू. तो ये देखिए इन्वेस्टर की जब लिंक जाता है, क्लिक करने के बाद इन्वेस्टर को ऐसे दिखता है. ठीक है. Now investor has to select investor type. इन्वेस्टर का टाइप जैसे रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एनआरआई दो टाइप है, चूज कर सकते हैं. इन्वेस्टर हैव टू चूज मोड ऑफ होल्डिंग. मोड ऑफ होल्डिंग देखिए, इन्वेस्टर कैन चूज इंडिविजुअल, इन्वेस्टर कैन चूज माइनर, जॉइंट होल्डिंग और एनीवन और सर्वाइवर. ये सब इन्वेस्टर को चूज करना पड़ता है. मैं दिखाता हूं. Yes, suppose investors choose NRI as the investor status. So as soon as the investor choose NRI, the investor have to put all this detail, NRI address detail, and the investor have to select the NRI residence country. जैसे ये पूरा लंबा लिस्ट आ जाएगा, investor have to select. Now, if suppose investor has choose anyone or survivor, प्राइमरी जो अकाउंट होल्डर है वो तो डिस्ट्रीब्यूटर मेंशन कर दिया है. अभी इन्वेस्टर के पास ऑथोरिटी है सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर ऐड करने. नाउ इफ इन्वेस्टर select anyone or survivor, then investor has an option to put first joint holder, second holder, and second joint holder, that is third holder. इन्वेस्टर को ये डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर. ओके. नाउ सपोज इन्वेस्टर पुट ऑल द डिटेल and proceed. Now suppose investor has choose minor. Look into the screen very carefully. Till now I haven't select the status as a minor. So here for non-adherence to placement guidelines, the following student will not be included in further placement at IP for being absent during the selection process of ANG Bank on 9th November until they send a mail to placement department after due consultation respective mentor coordinator. वो भी लिखा है, वो ठीक है, फॉर्मेट है. Okay, now look into the screen very carefully. Till now I haven't selected the status as minor. So currently it is showing as primary holder name. Here the holder name is selecting as a primary holder name. As soon as I select this folio status as minor, see, this thing changed into guardian name. Guardian name तुरंत change हो गया. पहले क्या था? पहले था primary holder name. Now it has been changed to guardian name. Mode of holding minor. Okay. Now when I have choose minor as a mode of holding, I have to put minor name, date of birth, minor PAN, and minor residence. These things I have to mention in the system as an investor. Now I have to select bank. After selecting bank, I can select the existing bank. On as an investor, I can put a new bank through which I have to do investment. Okay. Now after clicking on the bank, I can put a nominee. Maximum 3 nominee as an investor. I can put add nominee detail, maximum 1, 2, 3. Maximum 3 nominee, I can submit. After putting the nominee detail, I have to click submit and make the payment. So this thing investor have to complete. Investor को ये चीज पूरा complete करना पड़ेगा. So if you want, I can share this PDF to all of you so that you can share with your investor. Investor करने के बाद ही अगर थोड़ा सा उनको guidance मिल जाएगा कि भाई ऐसा होता है, मुझे link click करने के बाद ऐसे मुझे detail आएगा, तो उनको थोड़ा सा guidance मिलेगा. Now coming back to our mobile screen. So चलिए हम लोग अभी इन्वेस्टर देख रहे थे. We have finished the investor status, investor option. Now we are going to the transact, the third option.
At the bottom menu, there is the third option, the transact. चलिए transact में click करते हैं. Now clicking on the transaction, you can see there are two different options. One is existing investor and another is new investor. Suppose you want to make an investment for an investor which is not under your code. आपका code में है ही नहीं, एकदम नया investor. So for which you have to go to this new investor. Click on this investor, new investor. You have to put a PAN and then search. PAN number देके search करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई record आपका database में है ही नहीं. So you have to put the PAN number, click on search, detail come and you have to proceed. Otherwise, you can initiate a transaction for your existing investor. ये existing investor दिख रहा है, existing investor में click करके existing investor click करने से पूरा detail आपके पास आ जाएगा. You can search your investor by name, PAN number, folio, mobile number, email ID. सर्च करके उनके लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. जैसे मैंने एक डेमो दिया आपको, इसे भी ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं. वैसे ही परचेज है, रिडेम्पशन है, स्विच है, एसटीपी है, एसडब्ल्यूटी है, कैंसिलेशन इस सब कर सकते हैं. तो इसके साथ साथ जैसे मैंने ये एमवी रामाकृष्णन क्लिक किया, इनिशिएट ट्रांजैक्शन. नाउ ई-नैश, व्हाट इज ई-नैश? जो मेरे चैट बॉक्स में जो ये आ रहा था, मोहनलाल जी, वॉइस इज नॉट कमिंग. Any complaint from any other one? Am I audible, Gautam da? Yes, मेरा yes. आवाज आ रहा है? Yes, yes. Okay, Mohanlal ji, Mohanlal Vasan, voice is not coming. I am very sorry, Mohanlal ji. I don't know what is the problem. अच्छा, चलिए. So e-NASH. So what is e-NASH? E-NASH is nothing but a KOTM. It is nothing but a KOTM. KOTM क्या है? KOTM is K-Fintech OTM mandate. जैसे कैम्स में आप लोग उपयोग करते हैं, जो कैम्स का है COTM, ऐसे अपना है KOTM. So KOTM का मतलब है ये स्टैंड अलोन NASH मैंडेट आप क्रिएट कर रहे हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी NASH मैंडेट एंड KOTM? डिफरेंस इज, जैसे एक OTM मैंडेट, वन टाइम मैंडेट आप क्रिएट कर रहे हैं, इट मे बी बिलोंग टू ए स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड हाउस. एक्सिस हो सकता है, निपॉन हो सकता है, कैनरा बैंक हो सकता है. बट KOTM is a PAN-based OTM mandate. I repeat, KOTM is PAN-based OTM mandate. एक बार ये OTM mandate create हो गया, तो through this OTM mandate you can initiate a transaction online. KOTM के जरिए आप transaction initiate कर सकते हैं. कैसे करेंगे? ऐसे you have to click on the proceed. Click on this proceed button. देखिए, proceed button क्लिक करने के साथ साथ आपके इन्वेस्टर का डिटेल पूरा आ गया, क्योंकि आप KOTM कर रहे हैं फॉर योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर. चलिए, now look into the screen very carefully. Before proceeding, for your guideline there is an option e-NASH participating AMC. ये देखिए, e-NASH participating AMC. तो कौन सा AMC e-NASH participate करता है? Click on this AMC and you will get the detail. जैसे अभी तक UTI शायद KOTM, UTI और निरेई is not participating in KOTM. ये लेकिन जो म्यूचुअल फंड, most of the mutual fund, important mutual funds are participating in KOTM. एक बार लिस्ट को देख लीजिएगा, जैसे इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे आपको तकलीफ ना हो. You will not get in difficulty while initiating a transaction. Okay. So these are the AMCs who are accepting the KOTM. So यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा AMC KOTM एक्सेप्ट करते हैं. तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आप ये फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो इन्वेस्टर विल रिसीव एन ईमेल. कैसे ईमेल मिलेगा इन्वेस्टर को? ऐसे एक इन्वेस्टर को ऐसे ईमेल मिलेगा, योर डिस्ट्रीब्यूटर हैज इनिशिएटेड e-NASH registration in your investment act. ये आपका इन्वेस्टर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए एक e-NASH रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन फाइनल जो अप्रूवल ऑथराइजेशन वो इन्वेस्टर को ही करना है. तो इन्वेस्टर को यहाँ प्रोसीड बटन मिलेगा. प्रोसीड क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ
ये देखिए इन्वेस्टर व्यू, उनके पास एक विंडो आ जाएगा, नाम, पैन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा बैंक से हो रहा है वो नेम आ जाएगा, आईएफएससी कोड देना पड़ेगा, आईएफएससी कोड देके बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 लाख, देखिए मिनिमम 500 टू मैक्सिमम 10 लाख तक आप ओटीएम क्रिएट सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट ये देना पड़ेगा। स्टार्ट डेट एंड डेट देने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम विल रीडायरेक्ट हिम और हर टू द पर्टिकुलर बैंक नेट बैंकिंग पेज। जो बैंक से आपका ये हो रहा है, बैंक से जो आप जिस बैंक से आपका केओटीएम रजिस्टर हो रहा है उस बैंक का नेट बैंकिंग पेज में आपको लाके खड़ा कर देगा। ये आ गया। You have to put your internet banking user ID and password, login and apply. Very simple, very simple. तो ऑनलाइन अगर आप करेंगे, ऑनलाइन करने के साथ साथ विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर द केओटीएम विल गेट एक्टिवेट। नेक्स्ट टाइम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आप केओटीएम या एसआईपी करने के लिए जाएंगे तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए यू कैन ड्यू केओटीएम along with the ISIP के साथ साथ ये केओटीएम भी आपको दिखेगा। तो एक बार आप केओटीएम के जरिए कोई एसआईपी इनिशिएट करेंगे तो बाद में इन्वेस्टर के पास कोई यूआरएन नंबर नहीं जाएगा। इन्वेस्टर डोंट हैव टू लॉग इन टू हिज और हर नेट बैंकिंग एंड ऐड द यूआरएन नंबर एज ए पिकर। ठीक है, वो केओटीएम से उनका जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट है वो केओटीएम से वो डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा एज पर स्पेसिफिक डेट। तो ये हो गया मेरा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्ट हो गया। केओटीएम को मैं एक्सप्लेन कर दिया। इट इज एक्चुअली ई-नेश। इसको देख के घबराइएगा मत, ये एक्चुअली इट्स अपीयरिंग एज ई-नेश, इट नथिंग बट ए केओटीएम। इसके जरिए आप आपका इन्वेस्टर के केओटीएम रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी टोटली ऑनलाइन, फुल ऑनलाइन। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद आता है आपका अर्निंग। चलिए अर्निंग में आते हैं। अर्निंग में देखिए सिलेक्ट हियर टू चेंज एएमसी। आप जो एएमसी के लिए काम करते हैं वो एएमसी को अगर आप क्लिक करेंगे, इफ यू क्लिक दिस पर्टिकुलर एएमसी, तो देखिए उस एएमसी के लिए लास्ट 5 ब्रोकरेज रिसीप्ट, टोटल अमाउंट, कौन सा पीरियड के लिए आपको मिला है और मोड ऑफ पेमेंट क्या है और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या है, एक छोटा सा समरी आपको मिल जाएगा। लास्ट 5 ब्रोकरेज रिसीप्ट, वेरी इजी। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज मेन्यू। The last option आपको दिख रहा है वो है मेन्यू। Click on the menu. Couple of things are available over here. eKYC is available. We'll get into the detail eKYC. अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो मैंने आप लोगों को दिखाया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो जो दिखाया वो है एज ऑन डेट। इट वाज एज ऑन डेट। लेकिन ये भी हो सकता है you want a statement of account for a particular period, एक particular period के लिए चाहिए, 1 जनवरी 2021 to 31 मार्च 2020। तो कैसे करेंगे? Just you have to click on this mailback report। mailback report में क्लिक कीजिए, देखिए myself और investor दो ऑप्शन आ जाएगा। तो you have to click on this investor। Under investor there are several options। You have to click on this mailback SOA। click on this mailback SOA। मेलबैक एसओए के साथ आपको इन्वेस्टर के लिए मांग रहा है, कौन से इन्वेस्टर के लिए चाहिए, तो क्लिक ऑन द इन्वेस्टर। देखिए अभी देखिए दो ऑप्शन आ गए आपके पास, एज ऑन डेट और बिटवीन डेट। तो मुझे बिटवीन डेट चाहिए। बिटवीन डेट चाहिए तो मैं स्टार्ट डेट सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट डेट यहाँ पे सेट कर दिया, जैसे जनवरी 2000 सेट कर दिया, और मुझे चाहिए मार्च, जैसे मुझे चाहिए मार्च 2021। हाँ देखिए आ गया 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021। एम्स, जैसे मैंने एम्स सेट करना पड़ेगा जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है। आई हैव चूजन निपॉन, ठीक है। फोलियो चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर फोलियो नंबर है तो फोलियो नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फोलियो नंबर आ गया, यहाँ पे एक ही फोलियो है तो फोलियो नंबर आ जाएगा। अगर मल्टीपल फोलियो है तो मल्टीपल फोलियो यहाँ पे दिख जाएगा। एसओए टाइप सिंगल एसओए और मल्टी एसओए। अगर आप चाहते हैं जैसे आपके पास 5 फोलियो नंबर है तो सिंगल एसओए मींस a single PDF will generated under the single SOA. All 5 folios will be there. Multi SOA means for 5 different folio
5 different PDF will be generated. Self-extension password, this is the security option. You have to put a self-extension password and share it with your investor. आपके इन्वेस्टर को जब ये ऐसा मिलेगा तब ये पासवर्ड दे के वो ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं. It's very easy. Mail back case. और यहाँ से आप कैपिटल के स्टेटमेंट में निकाल सकते हैं. कैपिटल के स्टेटमेंट प्रोसेस सेम है. क्लिक ऑन द कैपिटल स्टेटमेंट, क्लिक ऑन द इन्वेस्टर and put the investor email ID, self-extension password, purpose of start date, end date. इस particular start date और end date के बीच में अगर कोई capital gain या capital loss हुआ है तो वो आपको investor का ID में clear हो जाएगा. Very easy. Now we will go to eKYC. सबसे ज्यादा क्वेरी मेरे पास जो आता है वो है eKYC. eKYC क्या होता है? कैसे eKYC करते हैं? तो अंडर दिस मेनू देयर इज एन ऑप्शन eKYC. यहाँ पे क्लिक करेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज KYC टाइप. KYC टाइप आपको चूज करना पड़ेगा. सिलेक्ट एन आइटम, क्लिक ऑन द सिलेक्ट एन आइटम. देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पे. ज्यादातर पार्टनर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये दो ऑप्शन है तो यह है क्या? ऑनलाइन IP विद e-sign एंड डिस्ट्रीब्यूटर eKYC. Two options available. So usually partners select the option distributor eKYC. तो ये है क्या एक्चुअली? डिस्ट्रीब्यूटर eKYC अगर आप चूज करते हैं, चलिए चूज करके देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर eKYC चूज करते हैं तो देखिए रेड इंक में एक यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ गया. क्या है? इन्वेस्टर प्रेजेंस रिक्वायर्ड. देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है. मतलब ये मॉड्यूल में अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर ये इन्वेस्टर आपके साथ बैठा हुआ है. इन्वेस्टर इज सिटिंग विद यू. क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोसेस है, इसमें इन्वेस्टर का प्रेजेंस बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. ठीक है, ये आपको फोटो खींचना पड़ेगा, वीडियो निकालना पड़ेगा, हाँ अपलोड करना पड़ेगा. तो अगर इन्वेस्टर आप बैठे हुए हैं कलकत्ता में, आपका इन्वेस्टर बैठे हुए हैं मुंबई में, तो ये जो मॉड्यूल है डिस्ट्रीब्यूटर eKYC मॉड्यूल ये वर्क नहीं करेगा. तो कौन सा मॉड्यूल वर्क करेगा? दूसरा जो मॉड्यूल है ऑनलाइन IPV विद e-sign, ये वाला मॉड्यूल यहाँ पे वर्क करेगा. तो चलिए क्लिक करते हैं. ऑनलाइन IPV विद e-sign क्लिक किया. नाउ यू ऑल आर अवेयर दैट KYC is not coming with a free of cost. KRAs are charging this particular AMC through which the eKYC is happening. तो यहाँ पे देखिए AMC आपको चूज करना पड़ेगा. मैंने AMC चूज कर लिया. जैसे मैंने AMC चूज कर लिया PGIM. ठीक है, पैन नंबर देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा. चलो सबमिट करने के बाद आपको इन्वेस्टर को एक लिंक मिलेगा ओवर ईमेल. इन्वेस्टर विल रिसीव ए लिंक ओवर ईमेल. तो लिंक क्लिक करने के बाद इन्वेस्टर को कुछ एक्टिविटी करना होगा. मैं दिखा रहा हूँ. ठीक है, लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर देखिए आपके पास इंस्ट्रक्शन बॉक्स आ गया. दिस प्रोसेस will send an email to your client for completing the KYC process. Your client has to upload relevant document and record a video of self by showing the document. Please inform and guide your client accordingly. यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. बहुत इजी है, बहुत इजी है. नहीं करने की बात नहीं. तो एज ए पार्टनर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपने अपने इन्वेस्टर का पैन नंबर डाल दिया, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट कर दिया. क्लिक ऑन द सबमिट बटन. तो सबमिट बटन के क्लिक करने के साथ साथ आपके इन्वेस्टर के पास एक लिंक चला जाएगा. तो लिंक चला जाएगा तो एज सून एज यू ओपन द लिंक, इन्वेस्टर का लिंक को ओपन करेगा तो उनको ऐसे कुछ दिखेगा. नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी फिलअप करके दिया है. इन्वेस्टर को क्या करना है? इन्वेस्टर हैज टू डाउनलोड द आधार, मस्ट आधार, नॉट ओनली आधार, मस्ट आधार फ्रॉम UIDAI वेबसाइट. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है UIDAI वेबसाइट, वहां पे डाउनलोड करना है. मस्ट आधार डाउनलोड करना है. मस्ट आधार डाउनलोड करके वो अपलोड करना है. डाउनलोड हो गया फिर चूज फाइल करके जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वो डाउनलोड में जाके वहाँ पे
चूज करके अपलोड करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ अपलोड उनको एक पासवर्ड देना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टर को एक पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड इज नथिंग बट यहाँ पे गाइडेड इन्वेस्टर का बर्थ ईयर, इन्वेस्टर का नेम का फर्स्ट 4 लेटर और बर्थ ईयर। सपोज इन्वेस्टर का नाम है संजय, तो इन्वेस्टर का फर्स्ट 4 लेटर SANJ, उनका बर्थ ईयर है 1973, तो SANJ 1973, ये हो गया आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड देके वो उसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड हो गया, ये आधार यहाँ पे आ गया, अपलोड हो गया, पासवर्ड दे दिया, अपलोड हो गया। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, योर फेस मस्ट बी क्लियर एंड विजिबल, प्लीज टेक ए पिक्चर विद गुड लाइटिंग फॉर बेटर आउटपुट। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर को एक फोटो निकालना पड़ेगा, अपना एक फोटो निकालना। फोटो निकालने देखिए स्टार्ट कैप्चर, जैसे क्या हो जाएगा स्टार्ट कैप्चर, स्टार्ट कैप्चर हो गया, फोटो आ गया। देखिए योर फेस मस्ट बी विजिबल, प्लीज टेक ए पिक्चर विद गुड लाइटिंग फॉर बेटर आउटपुट। ठीक है, अगर 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 फोटो ठीक से खींचा नहीं गया है तो यू हैव टू रिक्लिक द फोटो। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कुछ आपका नाम डिटेल, नाम सरनेम डिटेल सब देना पड़ेगा आपको। देने के बाद देखिए यहाँ पे आधार नंबर मेरे आ जाएगा। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पैन आपको अपलोड करना पड़ेगा, पैन और सिग्नेचर करके अपलोड करना पड़ेगा। बट मेक श्योर 200 की ज्यादा नहीं, फाइल साइज शुड बी मोर देन 200 की। हो गया, अपलोड हो गया, सब कुछ अपलोड हो गया, डिटेल दे दिया आपने। देने के बाद देखिए आधार बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेसर। तो यहाँ पे आधार बेस्ड एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेसर, यहाँ पे OTP जाएगा आपका आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, जो आपका इन्वेस्टर का आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें OTP जाएगा, इन्वेस्टर OTP पुट करना पड़ेगा। OTP पुट करने के बाद वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक चीज बोलना मैंने भूल गया, यू कैन डू KYC फॉर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली फ्रॉम द मोबाइल ऐप and from our website, that is number 1. And this KYC is Aadhaar based KYC. ये KYC करने के बाद after doing the KYC your investor can invest any amount of money. ऐसा नहीं है कि बहुत सारा गलत फहमी रहता है कि नहीं सर KYC हो गया, KYC है, हो सकता है कि मेरे इन्वेस्टर 50,000 के ऊपर इन्वेस्ट कर नहीं सके। नहीं, no limitation is there. No investment limitation is there. Your investor can invest 500 crore also, no problem. Okay. लेकिन ये KYC होने के बाद तुरंत समझ लीजिए KYC होने का आधा घंटे के अंदर it will appearing as a under process. Again, SCARBI KRA, it will appear as under process. So this by this under process status, you can only invest in that particular AMC through which the KYC has been done. एक बात दिखाता हूं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे क्या है, KYC के करने के टाइम पे मैंने AMC PGIM इंडिया सेट किया है, तो आप PGIM इंडिया में ही फिलहाल ट्रांजैक्शन कर पाओगे until and unless the status remain under process. स्टेटस जब अंडर प्रोसेस से वेरीफाइड हो जाएगा, till it gets turns to verified. वेरीफाई हो जाने के बाद ये KYC आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन डू ट्रांजैक्शन फॉर एनी म्यूचुअल फंड अक्रॉस इंडस्ट्री, नॉट ओनली फॉर KFin Tech Service AMC, you can do transaction for CAM Service AMC also. So this is very easy. KYC process is very easy. There is 2 different options: distributor eKYC and online IP with eKYC. If investor is sitting with you, choose distributor eKYC. If investor is sitting abroad or investor is sitting outside your city, you can choose online IPB with eSign. Okay. I can share the PDF in the group so that the partner can download and have an idea. So basically, these are the things. These are the this is the mobile app. Very easy. You can view the dashboard. You can view your AUM. You can view AMC price AUM. You can view your investor across AMC.
You can initiate a transaction, you can initiate a purchase, SIP, redemption, switch, SIP, SWP, cancellation. You can generate statement of account, capital statement from the mobile app. You can trigger NFO link to your investor from the mobile app only. So along with this, a new thing has been comes up. Mr. Hitesh Shah, KOTM process, please. KOTM process have already been explained, sir. You have to go to the transaction. If you can see my screen, you have to go to the transaction eNASH. eNASH is nothing but a KOTM. You have to click on this eNASH, proceed, and you have to put the detail. Means if you are doing eNASH for your existing investors, so all the details will come automatically. Now you have to click on the eNASH participating AMC, eNASH participating AMC to view that what are the AMCs that is coming under this eNASH or KOTM. Means what are the AMC who are currently accepting the eNASH or KOTM. Right now I can see Mirei and UTI is not accepting eNASH. So as soon as you put all the details, click on the submit, your investor will receive this thing. Your investor will receive an email. Click on the proceed button. Your investor will actually have to complete the process. KOTM, Mr. Shah, as I already told you that the KOTM all AMC under KFintech right now it is not available. As I can told you that eNASH participating AMC's module is there. Click on this eNASH participating AMC and you will get the list of AMCs who are accepting eNASH till date. Okay. I think I am clear, Mr. Hitesh Shah. Okay. So more or less I have completed everything. So a new thing has been included in our system. This is our home screen. mfs.kfintech.com. This is our home screen. So under services, there are a couple of options. Under services, there are mutual fund investor services. Under services, there is a third option, mutual fund investor services. Just click on the mutual fund investor services. A new window will appear. You don't have to log in. Just scroll down. And if you can see my screen carefully, the last option appearing here is change of bank account. Previously, it was not there, but right now it is there. Actually, this is for investor actually, but if you can get the detail from investor, you can very well change the bank account of the investor online. So click on the change of bank mandate. A new window will appear. Enter PAN. Suppose I am entering my PAN number. You have to generate an OTP, right? Generate OTP. Generate OTP. I have to put my OTP over here. Verify OTP. Now the main screen will appear. Now I have to select the mutual fund. For which mutual fund, for which folio, I have to update the bank account. Suppose I have to select Nippon Mutual Fund. Okay. Now folio number, suppose I have to choose this folio. Okay. Now my existing bank account will appear. ICICI. Existing threshold value is greater than 10 lakh. You have to upload the self-attested check copy or passbook, bank consolidation letter. Okay. So as soon as I click my existing bank account, all the detail will appear. Now I have to choose fund and upload the check. I have to upload the check, save check, and move further. Okay.
I have to upload the existing bank account check as well as I have to upload the old bank account. So this is the thing. This is the demonstration. It's a live one. So you can guide your investor to change the bank detail online, or as a distributor, you can help your investor to do it online. There's no physical document to be submitted. Okay. So this is an online bank change through our portal. Now, till now, I have explained all the detail about our mobile platform. So suppose anyone is not very comfortable to the mobile platform, I request him or her to log into our website. Our website is mfs.kprinting.com, distributor services. Just click here. Just on the left hand side, there is a new, now experience your KPrint card distributor app. Click here. A new window will appear, and you have to provide your user ID and password, the same user ID password that you are using for your mailback service. See, if you can view my screen carefully, everything is set. That was the mobile version, and this is the laptop version or desktop version. See, AUM is there, schemes are there, number of schemes are there, investors are there, the asset class by bifurcation is there, AMC by breakup is there, so everything is there. Okay. AUM summary is there. If you click on AUM summary, you can get the AMC by summary. This is a dashboard. If you want to do a transaction, you have to click on the new transaction. You have to click the existing investor, click on the transaction. If you want to do a transaction for your new investor, just click on the new investor and you can proceed. Okay. If you want to do the eKYC, just click on this eKYC button and the process is same. You have to just select this distributor eKYC and online banking with eSign and move further. No, sir. KOTM, Mr. Hemani, Mr. Shubham Hemani. KOTM is actually limited to 10 lakhs. As I have already showed you, e-NACH process, if you can see my screen carefully. E-NACH is actually maximum amount is 10 lakhs. Yeah, maximum amount. Maximum amount is a live screen actually. Maximum amount is 10 lakhs. Minimum 500 and maximum 10 lakhs. You can do a KOTM of 50 lakhs. Okay. So you can do eKYC also from the laptop or your desktop if you are not very comfortable with the mobile. Okay. So I think that is it. Now, if anybody have any question, you can ask me. Gautam. Yes. I think I have covered more or less everything. So if anybody has a question to ask, you can ask. Some chat is there. Thanks, Mr. Hitesh. I have a request. I have request everyone. I actually forgot. I actually forgot the thing. I need a feedback. Based on my presentation, I need a feedback. You don't have to fill up any pen or paper. Just I am sending a link. It is a Google link. Just click on the link. A window will appear. A feedback form will appear. I would like to request you to please go through the form and submit your feedback. Please, sir. My humble request. Please submit your feedback. Yeah, yes, many people are joining lately. So some of you can say what is today you have discussed. Just 5 to 10 minutes. Okay. So let me give you a brief introduction. So topic we are
discussed with the AUM after login to your mobile app or laptop. You can have a AUM. You can have AMC-wise AUM and net AUM. You can send NFO link for your investor from the mobile app or the laptop. You can generate a consolidated account statement, or you can generate a particular account statement folio-wise, scheme-wise. You can track your investor through 5 different search options, that is name, PAN, folio, mobile number, email. You can initiate a transaction for behalf of your investor. Maybe the investor may be an existing investor or maybe a new investor. You can generate new purchase, additional purchase, SIP, redemption, switch, STP, SWP, and cancellation. You can do all these things from our mobile app as well as laptop or desktop. You can do KOTM, that is KFintech OTM mandate, which is a PAN-based OTM mandate. And you can create it from the mobile or laptop and use it for further investment for your investor. You can initiate a KYC for your investor from the mobile or laptop, and you can transact through this particular KYC for your investor in future. A new addition has been added to our website, that is online updation of bank detail. This is actually not a distributor part, this is an investor part, but this is an online thing. Distributor can guide or help their investor to update bank detail through our portal, mfs.kfintech.com. This is not available in the mobile app as well. This is available to our web portal, mfs.kfintech.com, as I was already showing. Yeah. Is it okay? How to activate daily mailback service? Okay, Mr. Shubham Hemani. Mr. Hemani, let me demonstrate you. I think you have a mailback login. I guess you have a mailback login. So let me log into the mailback service. Obigda. Shubham is son of Amit Hemani. Okay. I think Mr. Hemani, you can view my screen. View my screen. It is a so you are actually asking for a daily subscription report. So as you can see my screen, the first option is subscription report. So most of the cases, partners are requesting for the report as they have to upload the same in a particular tailor-made software. Suppose they are investing investment. So you have to upload the report on a regular basis to investment software to get a consolidated report. So Mr. Hemani, as you can see, there is a transaction report, report number 307. It is if you can click on this report, transaction report, the load option should be without speed. Frequency should be daily. Email ID, you have to tick in which email ID you are asking for the report. It should be in DBF. You have to, if you have to upload it in your website or your tailor-made software. And suppose you just want to view the report, not to upload. Then you have to select the Excel. You have to click on the zip file and click on the submit. A report reference number will be generated and the report will start triggering from the next working day on a daily basis, from Monday to Friday. And every day you will get a report for last 3 days. Suppose today is Tuesday. So today you will supposed to get a report for Monday, Friday, and Thursday, considering all 3 days are working days. Okay. Mr. Yamane, am I clear?
অভিক একটা কথা বলবো। হ্যালো Yes sir. Yes sir, tell me. হ্যালো 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 অভিক কথা বলবো। Please. হ্যালো, বলছি যে এখানে যে ফিডব্যাকের যে সার্ভিসের জন্য যে এমসি গুলো দেয়া আছে সেখানে কিন্তু আইটিআই নেই, আইটিআই মিউচুয়াল ফান্ড নেই এখানে দেখছি। আমি জানি স্যার, ওই জন্য আমি বললাম যে বিফোর প্রসিড প্লিজ একবার লিস্টটা চেক করে নিন, ঠিক আছে? প্লিজ একবার লিস্টটা চেক করে নিন। আমি বলেছি মোটামুটি বড় এমসি গুলোর মধ্যে নিডেই এন্ড ইউটাই ইজ নট দেয়ার। না ঠিক আছে, আমি বলছি যে যেহেতু আইটিআইটাও কার্ভি দেখে সেটা নেই, যা সেটা জানানো। No, we have already taken up the matter with the respective AMC, which right now who are not accepting the KOTM. So sir, আমি রিকোয়েস্ট করবো as a distributor, as a partner, আপনারাও প্রেশার দিতে পারেন যে হ্যাঁ কেন নেই KOTM, আমার খুব সুবিধা হয়, KOTM থেকে আমার সুবিধা হয়, আমার ক্লায়েন্টকে আমরা সব মিউচুয়াল ফান্ডে করতে পারছি, আইটিআই শুরু করতে পারছি না কেন? না আমি এর আগের বারও করার চেষ্টা করছি, পাইনি, শেষকালে ওদের পার্টনার দিয়ে পার্টনার অ্যাপ দিয়ে করেছি, এখনো যেটা দেখলাম এখনো দেখছি নেই। We can try also, we can keep it continuous pressure to the AMC to accept the KOTM. Any question further? Please, my request is to please put your feedback in the enclosed form. I'm sending again the Google form. I will request you to please log in and put your remarks and comments and submit your documents. প্রথম না আমরা কি লিংকটা কি আমরা এতে পেস্ট করে দিতে পারি? Yes, গ্রুপে Yes. I think WhatsApp and Telegram both. WhatsApp and I can definitely put it in the group also. So I think if anybody misses out, so they can click on the form and submit their remarks. Mr. Reddy asked, sir, please see the chat box. Okay. Mr. Reddy, Parumita Das. Submitted. Okay, fine. When do ISAP after opening the link paying the amount invested not receiving your number to the email? Okay, fine. Sir, this is a problem actually. This is last 2-3 days. This problem actually appearing that after doing all the activities, investor is not going to receive the year-end number. In that particular case, you can send me the transaction reference number, or as a distributor, after initiating an ISIP, you are supposed to get a email from our side that your transaction is completed. A small table will be there in the mailbox. You have to take a photograph or take a screenshot of the table and send it to me, share it to me. I will arrange the year-end number for the particular transaction. So this is a temporary problem we have already taken up. It will get sorted by this week. Okay. Anyone, any question? Bishwaranjan Das, have any question to you? You can put your query in the Telegram group also, that which program has been created. So not an issue. হ্যাঁ অভিজ্ঞতা একটা কোশ্চেন ছিল। বলুন। হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে নিউ ইনভেস্টরদের যে সব ডাটা ইনফরমেশন গুলো যে আমরা ফিল আপ করা স্কোপ পাই না, মানে ইনভেস্টরদের নাম আর প্যান নাম্বার পুট করে দিয়ে ইনভেস্টরদের ইমেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইনভেস্টর তার নিজের ডিটেল, সেকেন্ড হোল্ডার ডিটেল, থার্ড হোল্ডার ডিটেল, এখন বিভিন্ন রিজনে একটা আনসার্টেনটির জন্য সবাই এখন সেকেন্ড হোল্ডার, থার্ড হোল্ডার চাইছে। সে সেকেন্ড হোল্ডার ডিটেল, থার্ড হোল্ডার ডিটেলস এবং ব্যাংকের ডিটেলস সব ইনভেস্টরকে ফিল আপ করতে হচ্ছে। তাই ইনভেস্টর বলছে আমি সব ফিল আপ করে দিচ্ছি আর তুমি বসে বসে কমিশন খাচ্ছ। এটা আমাদেরও একটা শুনতে লজ্জা লাগছে, আমাদের একটা খুব বাজে লাগছে। এটা আমাদের যাতে আমরা যাতে
ডিস্ট্রিবিউটর যেটা আমরা যারা ফিল আপ করতে পারি এবং ইনভেস্টরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, ইনভেস্টর দেখে নেবে, চেক করে নেবে সব ঠিকঠাক আছে কিনা। দ্যাট ইজ সব থেকে সেটা হচ্ছে মানে ভালো হবে জিনিসটা। We have already taken up this thing. I have already received this type of complaint from various partners or distributors. আমরা already take up করেছি এটা, ঠিক আছে? এবং কয়েকটা এই জন্য কয়েকটা ক্লায়েন্ট ফিল আপ করতে করতে সে চেক আপলোড করে করেও সে করলোই না। আমার একটা ভালো ক্লায়েন্ট ছিল, একটা বেশ ভালো এসআইবি ছিল, করা ছিল, দুটো তিনটে ফান্ড হাউসে, ওই দুটো তিনটে ফান্ড হাউসেই কার্ভি আন্ডারে, কেপিনটেক আন্ডারে, সে হাল ছেড়ে দিয়ে বললো করবোই না। আমি একটা কাজ করছি, আপনি কি টেলিগ্রাম গ্রুপে আছেন আমাদের? আমি একটা কাজ করছি, I will share the PDF which investor can view. Investor কে কি করতে হবে তার জন্য একটা PDF আছে, বেশি না, বেশি বড় না, 8-10 পাতা। So you can share the PDF to the investor for your regular investor or future investor. That sir ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ये देखिए बस ज्यादा कुछ नहीं, आपको शेयर चूज करना पड़ेगा। ये देखिए थर्ड होल्डर, सेकंड होल्डर चूज हो गया, नॉमिनी हो गया, बैंक हो गया, सब बस। तो इन्वेस्टर का একটা গাইডলাইন থাকলে কি হবে, ইনভেস্টর হ্যাভ এ গাইডলাইন, সো আই থিংক there will be no question of confusion. Gautam da, Mr. Hitesh Shah is actually asking for the Telegram link. So okay, I am giving just if you can share the Telegram link. Yes, I am sharing. Any query, any suggestion from any partner? অভিজিৎ, আপনার মোবাইল নাম্বার আর ইমেল আইডিটা একটু দিয়ে দিলে খুব ভালো হয়। আমি লিখে দিচ্ছি। অভিজ্ঞতা সবসময় অ্যাভেলেবেল, গোড়াদা, অত চিন্তা করার কিছু নেই। এনি টাইম এনি মোমেন্ট অভিজ্ঞতা হেল্প করে। হ্যাঁ, সেটা ফোন নাম্বার না পেলে কি করে আমি কন্ট্যাক্ট করতে পারবো? এখানে এই যে গ্রুপে প্রশ্ন করলেই উত্তর পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমাদের এর গ্রুপ আছে, একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে। আমি চেষ্টা করি মানে কেউ এই কোডে করে কোয়ারি করলে সেটাকে সলভ করতে, গ্রুপগুলো নিয়েও যায় আমার কাছে ডেইলি মুম্বাই থেকে কোয়ারি আসে, তো গৌতম দা রেফারেন্স। আচ্ছা, আর অভিজ্ঞতা আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে এটা তো একটা বললাম যেটা ক্যাম্পসের সাইট আছে, আমাদেরই ফিল আপ করতে হয়, ফিল আপ করে পার্টি দেখে নেয়, পার্টি তারপরে অনলাইনে পেমেন্ট করে দেয়, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, ম্যাক্সিমামটা আমাদের করতে হয় ক্যাম্পসে। তো ওটাকে একটা বললাম, ওটা একটা দেখবেন। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে মনে করুন কেউ এক সপ্তাহ বা আগে বা 2 সপ্তাহ জাস্ট কিছুদিন আগে সে রিডেমশন করেছে, এখন সেই রিডেমশন করেছে কি ন্যাবে করেছে, তার কত কি ইনু ছিল, এইগুলো জানতে চায়। তাও যেগুলো জিরো ফোলিও আছে সেগুলো স্টেটমেন্টটা জেনারেট করা যায় না, যেটা ক্যাম্পসে যায়। তো এইটা একটু দেখবেন, এটা একটু খেয়াল রাখবেন, যাতে জিরো ফোলিওতে যত জেনারেট স্টেটমেন্টটা জেনারেট করে ক্লায়েন্টের ইমেলে বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, এই জিনিসটা একটু দেখুন। আপনার কাছে আপনি যখন ইমেলটা জেনারেট করেন, আমার স্ক্রিন একটু দেখতে পাচ্ছেন, if you can see my screen, click on the mail back report. আচ্ছা, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন তো? The client wise EM report, report number 203, client wise EM report. So client wise EM report থেকে what is the advantage? You can get your investor data. Suppose between date, suppose I'm giving 1st October 2021. All funds, minimum amount, maximum ছেড়ে দিন, with zero balance. আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? দেখুন with zero balance করে, with zero balance মানে আচ্ছা, between this particular date range I can get the detail for with zero balance folios also. Excel zip file, এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিন, সাবমিট, আপনাকে চলে আসবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Telegram link already given in the chat box. Okay. And WhatsApp link also I am sharing. So if anybody having any query, any question,
So my request is to use the mobile platform. It is very good, very handy. Any query? Otherwise, we'll close the session. Mr. Rahul, the feedback definitely English में है सर क्योंकि हिंदी में तो मैं इतना ज़्यादा Google फॉर्म में टाइप नहीं कर सकते. इंग्लिश में है, it's very easy, very easy, very easy. Maximum time you have to put yes or no. जी. Maximum time you have to put yes or no or you have to tick on. Okay. कुछ लिखना नहीं है. अगर कोई अच्छे लगे, आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं डिमांड्स में. अगर कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जो क्वेरी है वो हमारे लिए भी यूजफुल हो सकती है ना. तो जी मैं समझा नहीं सर, दोबारा बोलिए. वही क्वेरी जब किसी और की होगी तो वो नहीं समझ पाएगा ना, इसलिए मैंने बोल दिया कि हिंदी में हुआ तो अच्छा होगा, ऐसा बोल दिया. हिंदी में आप कुछ फीडबैक नहीं. फॉर्म की बात करें सर, फीडबैक फॉर्म की बात कर रहे हैं क्या? नहीं हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी. ओह अच्छा, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर. जो भी क्वेरी है ना किसी का. हाँ, मैं इंसिस्ट करते रहता हूँ जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिसका मदर टंग बंगाली है, मेरा भी बंगाली है, तो ऑटोमेटिक वो है. लेकिन ये जो सेशन है ना वो सुनने वाले सभी बंगाली नहीं है ना अभी. नहीं, एकदम वही क्वेरी किसी और की होगी तो हिंदी और अंग्रेजी में वो समझ सकता है. नहीं, मैं देखिए मैं भी सेशन शुरू किया, मैं भी आई वुड आल्सो स्टिक टू इंग्लिश और हिंदी. ठीक है, ये सबको समझ में आया. मैं नहीं समझ पा रहा था ना, इसलिए मैंने नहीं, मैं जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया उसमें देखिए पूरे इंग्लिश हिंदी में ही था. उसमें था वो नहीं. क्वेरी के बारे में बोल रहा हूँ. क्वेरी के बारे में. हाँ, आप एक बिल्कुल सही. किसी और का होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा ना, वो भी. हाँ, एकदम. तो ये अभिज्ञा वो जो क्वेरी किया था गोरादा, थोड़ा एक बार बोल लीजिए वो क्वेश्चन क्या था. हाँ, जी जो क्वेरी किया था वो जो बोले थे कि अगर जीरो बैलेंस फोलियो है, जीरो बैलेंस फोलियो यहाँ से नहीं जनरेट होता है. नहीं से जनरेट होता है. आप एक बार ट्राई कीजिए, अपना जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां से बिल्कुल जनरेट होता है. और दूसरा नंबर है अपना जो मेल बैक रिपोर्ट है, क्लाइंट वाइज एएम रिपोर्ट, जो आपके सामने अभी खुला हुआ है. तो बिटवीन डेट्स देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जीरो बैलेंस, मतलब जीरो विद जीरो बैलेंस, मतलब जीरो बैलेंस का जो फोलियो है ये भी आपका ईमेल में ट्रिगर हो जाएगा. ये भी आपका ईमेल में ट्रिगर हो जाएगा. ठीक है. हाँ, और ये दूसरा जो क्वेश्चन स्वपन साहब पूछा था वो ये दोनों एएमसी का अभी तक इस पे अटैच नहीं हुआ, जैसे आईटीआई और दूसरा क्या बोला केओटीएम जो है. केओटीएम में क्या है ना, केओटीएम आप कर सकते हैं, केफिनटेक ओटीएम, लेकिन हर एक केफिनटेक सर्विस ओटीएम अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता. जैसे फॉर एग्जांपल यूटीआई, मीरेई, आईटीआई, ये लोग अभी भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते. यही बात. अभिज्ञा, हाँ, हिंदी में आपको पूछता हूँ. तो आप तो दिखा रहा है जो दिखा दिया जो क्लाइंट वाइज जीरो बैलेंस स्टेटमेंट निकलने के लिए तो दिखा दिया. तो जिसका कैपिटल गेन स्टेटमेंट चाहिए वो उसका क्या कैसे करके निकल सकता है? पहले सर पहले बताइए, आर यू यूजिंग मोबाइल ऐप और लैपटॉप और डेस्कटॉप? मोबाइल. अभी तो मोबाइल. So just you can see my screen. This is the mobile screen. Okay. So this is our software, KFinCard for distributor software. The bottom of the screen एकदम नीचे देखिए मेनू बोल के एक बटन है, मेनू. एकदम द मेनू बटन, एक न्यू विंडो आ जाएगा. क्या बताइए कि मेल बैक रिपोर्ट एक ऑप्शन आ रहा है. मेल बैक रिपोर्ट. मेल बैक रिपोर्ट में क्या, मेल बैक रिपोर्ट में जाके सेकंड ऑप्शन इन्वेस्टर, क्लिक ऑन द इन्वेस्टर एंड देयर इज ए कैपिटल गेन स्टेटमेंट. ये देखिए capital gain statement. Click on the capital gain statement. After clicking the capital gain statement, you have to see the investor. कौन सा investor के लिए आप capital gain चाहिए? Suppose मुझे ये investor के लिए capital gain चाहिए, तो मैं इसको क्लिक किया. इसको क्लिक करने से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा. ये भी इसमें investor की email ID डालना है, एक सेल्फ एक्सटेंशन पासवर्ड डालना है, स्टार्ट डेट एंड डेट. स्टार्ट डेट एंड डेट मतलब सपोज मुझे capital gain चाहिए
1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, तो मुझे वैसे डेट डाल के सबमिट करना है, तो इन्वेस्टर विल रिसीव द कैपिटल गेन स्टेटमेंट। ठीक है? यस, क्लियर। हेलो, हाँ क्लियर। Suppose you are using the website. Suppose you are using the website. Okay, mfs.kfintech.com. So it is mfs.kfintech.com. This is the home screen. If you have to go to services, mutual fund investor services. Okay, a new window will appear. Now you have to scroll down. आपको scroll down करके नीचे आना है। तो देखिए थोड़ा सा scroll down करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैपिटल गेन स्टेटमेंट। तो क्लिक ऑन द कैपिटल गेन स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन आता है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट बाय फोलियो एंड कैपिटल गेन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो कैपिटल गेन देखिए आपको फंड सेट करना है, जैसे आपको सपोज चाहिए मोतीलाल का फोलियो नंबर दिया है, पासवर्ड देना है, फ्रॉम डेट टू डेट करके सबमिट करना है। दैट इज नंबर 1। और सपोज आपको चाहिए कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, माने कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट। हाँ, तो आपको जाना है जो दूसरा ऑप्शन था, एक सेकंड, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट क्या है, आपको करंट फाइनेंशियल ईयर चाहिए तो करंट फाइनेंशियल ईयर दे दीजिए, प्रीवियस के चाहिए वो दे दीजिए, सेकंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर, थर्ड लास्ट, तो ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सपोज मुझे चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, मेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, कौन से म्यूचुअल फंड के लिए डाल दीजिए, ऑल कर सकते हैं या कोई भी 1 2 3 4 कर सकते हैं। ओके, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, यहाँ पे एक सेल्फ फिक्सेशन पासवर्ड देना पड़ेगा। तो सबमिट करने के साथ साथ ये ईमेल आईडी भी इन्वेस्टर ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी में आपका पूरा कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे चला जाए। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मतलब केफिनटेक सर्विस फंड में जितना सारा म्यूचुअल फंड है वो पूरा सेट आपको इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। ठीक है, वन शॉट एक साथ वन शॉट सब एमसी। ईमेल आईडी किसका होना चाहिए, इन्वेस्टर का ना इन्वेस्टर का? इन्वेस्टर का, डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं, ऑब्वियसली इन्वेस्टर। नमस्कार दादा। नमस्कार। हाँ मैं रुपेश बोल रहा हूँ, गिरिडीह झारखंड से। दादा ये मेरा ये सवाल था कि CKYC और आपके जो ये आपके एप्लीकेशन में जो eKYC है उसमें बेसिकली मेरा डिफरेंस क्या है? बस देखिए फॉर्मेट बना हुआ है CKYC का, अगर फॉर्म में फिलअप करके देंगे तो CKYC है, और सपोज आप फिजिकल में नहीं जाना चाहते, you have to go to online, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, यू कैन डू ओनली फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट, इंडिविजुअल रिटेल क्लाइंट। आप NRI के लिए नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट के लिए नहीं कर सकते, पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ये सब आप यहाँ पे नहीं कर सकते। यू कैन डू ओनली फॉर योर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। उसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना, मतलब डिफरेंस बोल के ना, डिफरेंट लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि इन्वेस्टर का आधार होना चाहिए, दैट इज नंबर 1। और नंबर 2 है आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं लिंक होगा तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जो ओटीपी जाएगा वो ओटीपी नहीं जा पाएगा, क्योंकि मोबाइल लिंक है ही नहीं। ठीक है, तो मोबाइल लिंक होना एकदम जरूरी है, मैंडेटरी। थैंक यू। रुपेश भाई कैसा है? बढ़िया दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप अच्छे सेशन लगातार आप कर रहे हो। रुपेश जी जरा फीडबैक दे दीजिएगा सर प्लीज। रुपेश बहुत बड़ा अच्छा वो दोस्त भी है, फ्रेंड भी है, वो गिरिडीह से है। वो ऐसा बंदा है जो कलकत्ता में आके वो ट्रेनिंग लेता था, ऐसा बंदा है। वो जानकारी सीखने के लिए वो सबसे आगे निकलता है। तो ये रुपेश, हम लोग जो सेकंड अभी जो चल रहा है ना, हम लोग बहुत सारा कुछ अपडेशन, अभी मार्केट जो सिनेरियो आ गया, नॉनली ये कार्वी एंड कैम्प्स के ट्रेनिंग से ही नहीं चलेगा।
IFLO का बहुत सारा अगला दिन सर्टिफिकेशन करना चाहिए, नहीं तो वो डायरेक्ट लाइसेंस नहीं रहेगा। आप स्टॉक ब्रोकिंग का काम कर रहा है, आप इंश्योरेंस में काम कर रहा है, हर जगह पे लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। ओनली MFD कैन नॉट डू एवरीथिंग। If you are doing the business of equity and other things, you need to clear the certification. Otherwise, cannot you write in WhatsApp group ये परचेस कर लीजिए, ये से कर दीजिए, कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये अगला दिन हमारा MFD फेटर्निटी के लिए चैलेंज है। इतना दिन जो हो गया, अगला दिन काम करने के लिए सबका पास थोड़ा आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए, तो रिटायरमेंट का जो कोर्स है वो करना कर पड़ेगा। आप PMS बेचेंगे तो PMS का सर्टिफिकेशन चाहिए। जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहता है उसका सर्टिफिकेशन अगला दिन के लिए जरूरी होगा, नहीं तो आपका सब ब्रोकिंग करना पड़ेगा। सब ब्रोकिंग मतलब आधा पैसा मिले, आधा पैसा नहीं मिलेगा और आपका एक्सेस भी नहीं रहे। ये अगला दिन होने जा रहा है। तो हम लोग को मेन फोकस है MFD को थोड़ा और ज्यादा नॉलेजेबल बनाना और सबको उसका इनकम और ग्रोथ कराना। सही है ना रुपेश भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए समय के साथ जो नहीं अपने आप को चेंज करेंगे ना, वो बिल्कुल पीछे रह जाएंगे या छूट जाएंगे। एकदम ये मतलब एक कड़वा सच है हमारे इस मार्केट के लिए। या तो फिर आप मतलब अपने आप को बदलिए, समय के साथ चलिए, नहीं तो फिर शिकायतें करते रह जाएंगे कि भाई MP क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है। और आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही होगा। और उसमें जो आप मतलब जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो वाकई में बहुत बेहतरीन है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये तो हम लोग तो सेबी का जो इंटेंशन है हम लोग के पास क्लियर है, वो लोग क्या चाहता है। तो ये हम लोग MFD जितना ये कर पाएंगे वो उनके लिए अच्छा है। नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वन फाइन बर्निंग देखेंगे, उनका काम चला गया, ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबका जो CP जो अभी NISM 5 का सब CP कर रहा है, तो ये भी सबको ये मैसेज होना चाहिए, CP NISM कंप्लीटली बंद कर देंगे, CP नहीं चलेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, और वो ये आदत में ढाल लेना चाहिए। हाँ, मेरी भी कोशिश होती है, मैं CP नहीं करता हूँ, मैं एग्जाम दे देता हूँ। अभी NISM नया जो बुक हुआ वो भी बहुत सारा चेंजेस हो गया। और 10A10 भी बुक जो बनाया वो तो CFP से ज्यादा हो गया, CFP प्लस हो गया। तो ये हमारा जो रेगुलेटर है उसका पूरा मिशन क्लियर है, वो क्या करने जा रहा है अगला 2-3 साल में। देखिए हमारा इंडस्ट्री पूरा मैच्योर होने जा रहा है, ऑल आर प्रोफेशनल भी हो रहा है। आपने कल या परसों जो रोमित दा के साथ जो मीटिंग रखा था, उन्होंने एकदम स्पष्ट इसमें क्लियर कर दिया है कि सेबी की क्या मंशा है। उन्होंने बिल्कुल एकदम बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि आप तैयार हो, बाय हुक बाय क्रुक जो भी हो, आपको अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, नॉलेज नहीं गेन करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, तब तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। फिर आपका कितना बड़ा भी AUM हो, कितना बड़ा भी आपका कितना पुराना AUM हो, मतलब वो जाने में समय नहीं लगेगा, 1 फोर्टनाइट में चला जाएगा पूरा। बिल्कुल। आज तो ये एक क्लिक में जा रहा है। हाँ, वो एक क्लिक में ही जा जाएगा एकदम। और ये सबका ये कशन भी है, जो अभी तक कशन नहीं मान रहा है, जो व्हाट्सएप में टेलीग्राम ग्रुप बना के उसमें सब कुछ सलाह दे रहा है, जो एडवाइस कर रहा है, वो ये पूरा सेबी के पास जा रहा है। तो इसका बहुत सारा बंदा का ARN और जो लाइसेंस है वो चला जाएगा, ये पता नहीं चल रहा है। बहुत आदमी को ये एडवाइजरी करने के लिए उसका सर्टिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज ही कांट डू इट। ये सबका, क्योंकि ये इंदौर बहुत इंदौर वाला को लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो सब टेलीग्राम ग्रुप करके चला रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखो ना, इंदौर वाले का फोन भी आना कम हो गया। हाँ, अरे हर रोज इंदौर वाला का फोन आने था, जी इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें
सुबह करो शाम में इतना कमाई हो जाएगा, इसलिए तो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग हम लोग का साथ है, हम लोग तो कोशिश करेंगे उनका जितना ये सर्टिफिकेशन नॉलेजेबल जो सेशन है, जो हम लोग फ्री में जो कर पाएंगे तो करेंगे, जो फ्री में नहीं होगा, जो कॉस्टिंग होगा वो कॉस्ट में करना पड़ेगा, जो उसका कैपेसिटी है करेंगे, जिसका पास कैपेसिटी नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है हम लोग। लेकिन ऐसा है ना दादा कि मुफ्त का भी वैल्यू भी नहीं होता है ना। आप ज्यादा मुफ्त का मैंने मिलेगा ना तो फिर वो उसकी महत्व नहीं रह जाती, उसकी इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते हैं। हाँ वो बात तो सही है। आज का अटेंडेंस से पता चल गया ये फ्री प्रोग्राम था, इसलिए ज्यादा आदमी इसमें नहीं आया। लेकिन ये प्रोग्राम के लिए मिनिमम 500 की 200 रुपीज लेना था तो बहुत आदमी आ जाता था। तो ठीक है, सबके लिए सब कुछ है, अगले दिन करेंगे। तो ये तो चलते ही रहेगा, लेकिन सबका कसस में चलना पड़ेगा, नहीं तो वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट तो उनका ही लाभ है, बहुत कुछ जानते हैं। हाँ ये बात तो वही है, लेकिन उनका वो समझ पाता है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो कुछ नहीं होता है दुनिया में ये नहीं पता चलता। हर रोज जो चेंज हो रहा है इसका पता नहीं चल रहा है। हर रोज सेबी और एमफी जो रेगुलेटर है, ये लोग अंदर में जो चेंजेस कर रहा है, ये कितना आदमी का पास ये नॉलेज है बताइए? वो इंफॉर्मेशन कितना आदमी के पास आता है? आदमी के पास आता ही नहीं है क्या करने जा रहा है, क्या करने वाला है। और आदमी का पास कब आता है? जब इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। उसके पहले किसका पास क्या आता है? और डिमोनेटाइजेशन जब होने के बाद सबका पता चला डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके पहले तो किसी के पास नहीं था। और सिंपल सा बात है, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, चाहे वो नोटबंदी के बाद हो, चाहे आपको ये कोविड काल में हो, देखिए जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, जिन्होंने अपने आप को फिजिकल से आपको सिस्टम पे ऑनलाइन पे लाया, ऐप पे लाया, तो उनको फायदा ही हुआ। वो चाहे सर्विस देने में हुआ अपने क्लाइंट को, चाहे हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है सब। ये रुपेश जी आपका पता है, आप 2019, 18, 19, 20 तो ये पैंडेमिक चालू हुआ, लेकिन हम लोग 2018, 19 में कितना सारा डिजिटल प्रोग्राम किया है। आप वहीं से आया है, कलकत्ता में, श्रीरामपुर में, कहाँ आया है। तो वो जो हम लोग उसी टाइम तो हम लोग को पता नहीं था कि पैंडेमिक आएगा, कोरोना होगा, ये तो हम लोग का किसी को पता नहीं। लेकिन हम लोग को ये पता था कि डिजिटल सबका करना पड़ेगा। तो हम लोग जब डिजिटल करने के लिए बहुत सारा लोग हम लोग को बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सामने पीछे में, ये लोग बहुत नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, ये लोग का साथ हम लोग काम नहीं। बेसिकली यूटीआई ऑफिस का सामने में जो लोग यूटीआई का जो काम करता है वो लोग तो बहुत इंसल्ट, क्योंकि यूटीआई ऑफिस में हम लोग बहुत सारा ट्रेनिंग किया है, तो उसमें वो लोग इंसल्टेशन तो बहुत किया है। तो ये आज का दिन वो पैंडेमिक का पता चल गया किसका उनको तो कोविड-19 में पता चल गया ना भाई कि क्या स्थिति। जब सारे ऑफिसेस बंद थे, सारे रजिस्ट्रार बंद थे, जब ट्रांजैक्शन सारा कुछ जो था वो फिजिकल से ऑनलाइन मोड में आ गया था, तो उनको तो पता चल ही गया होगा। हाँ वो तो पता चल गया, तो कुछ नहीं उनका बहुत सारा हो गया। तो इसलिए हम लोग तो जो कुछ किया है हम लोग बहुत दूर से देख रहा है जो अगला दिन क्या होने वाला है। लेकिन जो हम लोग का साथ चलते हैं उसका फायदा है, जो नहीं चलता है वो लोग तो समझ पाता है क्या हो रहा है। तो ठीक है। अब आज रेलगाड़ी और हवाई जहाज के जमाने में भी बैलगाड़ी से चलना है जिनको, अब जिनकी जिद है तो उनको जिद, उनका मुबारक। मुबारक है उनको जिद, क्या दिक्कत है। ठीक है। मैंने तो देखा भाई कि मुझे, क्योंकि मैं पहले से भी, क्योंकि मेरे को एक ऐसा है ना कि मैं जिस एरिया से हूँ ना, तो हमारे पास ना हमारे एरिया में कोई एमसीज है ना रजिस्ट्रार है। ठीक है, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ आप तो जानते हैं, ये काफी रिमोट वाला एरिया है। ठीक है, तो मुझे तो पहले से भी मुझे अपने आप को अपग्रेड करना था, तो मैंने तो बीएससी को कब का शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा जिन जिन एमसीज का या चाहे कार्बी कैंप्स का जहाँ पे यूज हो रहा था, जैसे कि के फिनकार्ड का ऐप से भी जो भी चीजें हो सकती थी वो मैंने किया, या फिर कैंप साइज हो 360 हो वो। वैसे मैं बीएससी पे ज्यादा हूँ और मैंने
मेरा फायदा हुआ कि भाई मैंने ऑलमोस्ट अपने क्लाइंट को कोविड काल में 60% क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर दिया बीएससी में। ठीक है, तो उसका बेनिफिट हुआ। तो ये अभी आपका एमएफ यूटिलिटी का बारे में क्या पता है? मेरा जानकारी नहीं, लेकिन एमएफ यूटिलिटी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो उसका एक प्रोग्राम करेंगे जल्दी। अच्छा, तो बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, एमएफ सबसे पहला मेरा जो ट्रांजैक्शन वाला मैंने प्लेटफॉर्म में था, तो एमएफ यूटिलिटी से मैं जुड़ा था, लेकिन ना जाने क्यों उनकी ओर से मतलब और रेगुलर कांटेक्ट या उनका प्रोग्राम वगैरह नहीं हुआ, और तो मैं अपने आप को उसमें अपग्रेड नहीं कर पाया। लेकिन बीएससी में मैंने शुरुआत किया, और बीएससी मैंने एनएससी से भी मेरा टैग है, और एमएफयू में भी है, लेकिन मैं बीएससी पे ज्यादा वर्क करता हूँ, और ज्यादातर मेरे क्लाइंट जो है वो बीएससी पे ही ऑन बोर्ड है। हाँ, बीएससी सपोर्ट देता है, इसलिए बीएससी सब में डाले। लेकिन एमएफयू यूटिलिटी अभी जो उसका गणेश जी जो बीएससी से गया ना, बीएससी से, वो अभी इसका इतना डेवलप किया है कि उसका सबके लिए बहुत अच्छा। उसमें सबसे बड़ा क्या है ना, इन्वेस्टर का जो ग्रीवेंस है, ये सब ग्रीवेंस डायरेक्टली, क्योंकि वो तो एक्चुअली एमपी का उनका है, तो डायरेक्टली वो कंप्लेन कर सकते हैं। जो अभी बहुत सारा जो कंप्लेन नहीं, कोई साइड से आप बीएससी एनएससी ये भी कहाँ से आप कंप्लेन नहीं डाल सकते, लेकिन ओनली एमएफ यूटिलिटी जहाँ से आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं किसी ट्रांजैक्शन। एमएफयू को लेकर के एक हम खूब जल्दी हम करेंगे क्योंकि जरूरी है, देख लिया अभी जरूरी है। हाँ, तो एक्चुअली क्या था ना दादा, मैं बोल रहा था कि एमएफयू को लेकर के हमारे फैकल्टी में एक थोड़ा सा नेगेटिव ये भी चीजें है कि ये डायरेक्ट को प्रमोट करते हैं। नहीं, ऐसा है वो तो है ही। अरे डायरेक्ट तो ऑल एमसी कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो तो ऑल एमसी भी कर रहा है। उसको लेकर के बहुत मतलब एमएफडी जो लोग हैं वो थोड़ा सा मतलब हाँ समझ गए, हाँ पता है। हाँ इसीलिए, लेकिन देखो आप सिंपल सा बात है, ये सब चीजें आगे भी एग्जिस्ट करेगी, चाहे डायरेक्ट हो चाहे आपको रोबो एडवाइजरी हो, ये आपको इनके साथ हमें अब जीना सीख लेना होगा, वरना फिर मतलब क्योंकि सबके अब अपने हिस्से हैं। ठीक है, वो बोले ना बोले करेंगे ही, वो करेंगे ही करेंगे। ये चाहे यूटी मनी हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे आपको जेरोधा हो, चाहे ग्रो हो, ये सब एग्जिस्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए आपको मतलब और आपको अपना हिस्सा उसमें से देखना होगा। ठीक है, और बात तो सही है कि भाई आगे अगले 10 सालों में बहुत सारे, जैसे अब जो महीने महीने परिवर्तन हो रही है ना, आने वाले समय में आप वीकली में देखेंगे ये चेंजेस, वो तो देखने वाला है। हाँ, काफी तेजी से होने वाली है अब। हाँ। और क्योंकि जैसे कोविड में ही दिख ही गया, अब ये चेंजेस, क्योंकि अब ये चेंजेस देखो एएमसी को भी मालूम हो गया भाई कि हम अब आसानी से है ना, विदाउट फिजिकल मीटिंग भी हम मतलब आसानी से अपना कॉस्ट कटिंग के लिए वो हर तिकड़म आजमा रहे हैं, तो वो करेंगे ही करेंगे। तो अब आपको मतलब लोगों को अब आज हमारी आदत हो गई ना, हम हर मीटिंग को जूम और गूगल मीट में करने की। तो इसका नेक्स्ट क्या है आपका पता है? कि सेबी तो सब देख लिया, तो एएमसी वाला का कॉस्टिंग कम हो गया, कोई कॉस्टिंग नहीं है, तो ईवा क्या करेंगे, एक्सपेंस रेशियो मिनिमम 50 पैसा 0.5 50 पैसा बेसिस घाटेंगे एनी डे। और जब 50 पैसा घाटेंगे वहीं पे, तो डायरेक्टली वो हमारा कमीशन से घटेंगे। हाँ, तो उसके लिए एनी डे ये हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए आपको मैंने वही आपको प्रिपेयर रहना होगा, रेडी रहना होगा, एकदम सीधा बात है। तो रूपेश जी अच्छा हुआ कि बहुत सारा हम लोग यहीं पे जो लोग है वो सब सुन रहा है, लेकिन कोई किसी का कुछ एक्सपीरियंस है बता लीजिए कि हम लोग होमली एटमॉस्फेयर में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, किसका कुछ बात करना है तो बात कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला 5 मिनट्स में क्विट करेंगे ये प्रोग्राम। जी anyone you can share your views also, anyone? We are quitting within 5 minutes. फीडबैक फॉर्म हाँ, जो गूगल फॉर्म, हाँ गूगल फॉर्म में दे दिए, मैंने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। अच्छा, वो चैट बॉक्स है।
मैं देख लेता हूँ। मैं एक्चुअली मैं देखा नहीं था। फिर एक बार दे दीजिए, फिर और एक बार दे दीजिए। हाँ मिल गया है सर, मिल गया। हाँ फीडबैक दिया, इसमें ग्रुप लिंक भी दे दिया जो हमारा के फिनटेक के लिए ग्रुप बना है, सबके लिए, पैन इंडिया के लिए बनाया हुआ है एवं फ्री में, जो जहाँ पे क्वेश्चन से मिल जाता है सबका आंसर। टेलीग्राम ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया के फिनटेक के लिए। देवाशीष गोस्वामी, आप कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे? देवाशीष दा, देवाशीष गोस्वामी। না, আমি তো সত্যি আজকে আই এম ভেরি সরি দ্যাট আই ওয়াজ ভেরি লেট, সো আই ক্যান সে এনিথিং ফর দিস প্রোগ্রাম, বাট দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ইনোভেটিভ প্রোগ্রাম। আই হ্যাভ মিসড এ লট, আই এম ভেরি মাচ মানে সরি ফর দ্যাট। ओके, तो न्यू एडिशन जो कुछ हुआ है वो देखा है, अभिज्ञता को एक बार पूछ लीजिए ये न्यू एडिशन क्या हुआ। You can definitely WhatsApp me or call me, you know my number. If anything required, by any chance I can support you, we'll definitely make that. Thank you very much, sir. Thank you. You are always with us, so we are thankful. तो अभिज्ञता, so we can conclude our program today. So we can do this type of program again, and expected that next time the participant will be more. डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रुपेश भाई, तो ये वोट ऑफ थैंक्स देखे आज का प्रोग्राम खत्म कर दीजिए रुपेश भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग पार्टिसिपेशन किए हैं, और अभिज्ञता का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि, और आशा करता हूं कि आगे भी वो इस तरह का प्रोग्राम हम एमएफडी के लिए करते रहेंगे, ताकि हमारा नॉलेज हमारा अपग्रेड हो। और इसमें मैं गौतम दा को भी बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि वो इस तरह का इनिशिएटिव हमेशा ले रहे हैं और आगे भी वो देते रहें। हाँ, ये हम लोग जल्दी में वो कैंप्स का भी प्रोग्राम करेंगे और एमएफ यूटिलिटी का प्रोग्राम जल्दी अगला 10-15 दिन के अंदर दोनों प्रोग्राम करेंगे, जो सबके लिए, और ऑल आर फ्री, नॉट फॉर पेड। बिल्कुल बिल्कुल, एमएफ यूटिलिटी वाला बिल्कुल मैं उसका मतलब मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कल आज के बात हुआ मेरा साथ, उसका जो बॉम्बे बोला ना गणेश जी अभी बीएससी से तो बात हो गया, तो कल वो सेट कर लेंगे कब करेंगे। और उसके साथ कैंप्स का भी जो अपडेशन, देखिए हर टाइम अपडेट हो रहा है, तो ये हमारा ये रेगुलर प्रोसेस है। मंथली मिनिमम 1 डे एक कैंप्स का, एक कार्वी का, एक जितना आरटीए है सबका मीटिंग प्रोग्राम करना ही चाहिए। हम लोग करते भी रहेगा, अगले दिन भी करेंगे। अच्छा अभिज्ञता, ऐसा कुछ हो सकता है जिस तरह से अभी इन्वेस्टरों के लिए जो कॉमन प्लेटफॉर्म आपका कैंप्स और के फिनकट ने मने लेके आए हैं, एमएफ सेंट्रल, तो क्या एमएफ सेंट्रल में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है जो जैसे अभी हो सकता है सर? ये हम लोग स्टेज वाइज लाएंगे। Currently in MF Central only investor access is available, ठीक है, लेकिन स्टेज बाय स्टेज हम लोग करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर अगर लॉग इन करेंगे भी, he or she can only do नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एनसीटी कर सकते हैं, चेंज ऑफ बैंक, चेंज ऑफ ईमेल आईडी, चेंज ऑफ मोबाइल नंबर। नहीं वो चीजें तो हमें ही, मेरा कहना ना कि वो चीजें हमें ही करना पड़ रहा है, इन्वेस्टर करते नहीं। अभी जैसे कहा था ना साहब कि मतलब आप किस बात के आपको कमीशन जाता है, तो वो चीजें हमें ही करना पड़ता है, वो लेकर के भी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो चलो वो भी अच्छी बात है। तो बोलता है इन्वेस्टर ये तुम कमीशन ले रहे हो, तुम काम करो,
नहीं अच्छा दादा, ये कम से कम ये अगर ये इसको आप अच्छा मानिए, इसको अच्छा है, ये कॉन्ट्रैक्ट रहना अच्छा है इन्वेस्टर के साथ। जितना अगर वो अपने करने लगेगा ना, हाँ, सब आदत आ जाएगा, सब कुछ करने के लिए बहुत सारी चीजें वो अपने कर लेगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। सीधा बात बोलिए ना, डायरेक्ट हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट हो जाएगा। वो एक बटन दबाएगा और उसके बाद कैश अपलोड करेगा, ठीक है। उसको पेटीएम जैसा कोई ऐप आएगा, वो बोलेगा कैश अपलोड कीजिए और सारा कुछ लेकर चला जाएगा। तो उसलिए वो हमारा ऊपर डिपेंड करता रहिएगा, ये थोड़ा अच्छा बात है जी। तो अच्छी बात है, स्टेज बाय इंप्रूवमेंट होगा। जैसे अभी सिर्फ इन्वेस्टर को लॉगिन दिया गया है, इन फ्यूचर विल नहीं उसमें क्या है ना कि जैसे अभी क्या होता है ना कि हमें ट्रांजैक्शन के लिए जैसे होता है ना कि जैसे बीएससी या इस तरह के जो ऐप ने हमारे लिए थोड़ा सा ईज किया है, तो रजिस्ट्रार इन पे क्या होता है ना कि मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारे काम को और हम रजिस्ट्रार के अपेक्षा मैंने जैसे के-फिन कार्ड की जगह हम प्रेफर करते हैं बीएससी, एमएफयू या एनएससी। ये इसलिए करते हैं कि वहां पे हमारा एक जगह सारे एमसीस का वर्क हो जाता है बहुत हद तक, ठीक है। तो उस तरह का चीज जब एमएफ आ गया, एमएफ सेंट्रल हो गया है, उस तरह से अगर वो चीजें इन्वेस्टरों के साथ साथ अगर डिस्ट्रीब्यूटर को भी उसमें मिल जाए, तो क्या होगा ना कि अभी जैसे क्या होगा कि एक भी हम जैसे के ओटीएम आप जो बोल रहे हैं आपका वो अगर वो ओटीएम सिंपल सा ओटीएम भी हो जाए और सभी एमसी उसको मतलब एक साथ सपोर्ट करे सिस्टम में, ठीक है, तो इजी हो जाएगा, बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। ओके, और मुझे लगता है जल्द ही होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। Okay, thank you. Good night. Thank you all for participating. Good to all of you. thank you. Good night. Good night. Good night.